Good morning students. How are you all? I hope you all are fine. Today we are going to do the continue the chapter, and in today's class we will do word meanings as well as back exercise. Okay? So in previous class we have studied about microbes, which are very small living things, okay, which are found everywhere, and in this we have studied about bacteria, and total there are 4 kinds. So today we will study about 3 more types of the microbes. Now comes virus. A virus is smaller than a bacterium, singular of bacteria. It grows and reproduces inside the cell of a living body. So virus, its size is smaller as compared to the bacterium. Bacteria means many bacterium. Okay, bacteria is the plural form, bacterium is the singular form of bacteria. Now this virus, it grow and it reproduce. Reproduce means produce its own type inside the cell of a living body. Suppose any virus, it entered our body. So in our body it will grow and it will increase its number. That means it will reproduce. It causes diseases like polio, smallpox, chickenpox, AIDS, common cold, flu, measles. So all these diseases, it is caused by virus. And in now there is a very famous there is a virus, that is coronavirus. Okay, so corona is also caused because of virus and it is very dangerous. Okay, तो बच्चों जो वायरस है वो एक और टाइप, सेकेंड टाइप का हमारा माइक्रोब है. ये वायरस बैक्टीरियम से छोटा होता है. जो बैक्टीरिया का सिंगुलर फॉर्म को बैक्टीरियम कहा जाता है. अगर आपकी बॉडी में वायरस घुस जाएगा ना, तो वो वहाँ पे ग्रो करेगा, फिर अपने जैसों को और पैदा करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा. ठीक है, सेल के अंदर आपकी बॉडी में. ठीक है, तो इस वायरस से क्या होती है, बीमारियां होती है, जैसे पोलियो है, स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, एड्स है, कॉमन कोल्ड, फ्लू, मीजल्स, ये सब बीमारियां जो है वायरस से होती है. अभी तो देखो कोरोना भी हो रहा है, तो कोरोना भी किससे होता है, कोरोना वायरस से, तो वो भी एक वायरस है. ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, फंगी. फंगी आर माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स दैट ग्रो ऑन डिकेइंग मैटर. Some fungi are harmful as they cause skin diseases like athlete foot and ringworms. Some fungi like yeast are useful as they help to make bread soft. So fungi are microscopic plant. That means that kind of plant which are very small. Okay, and they grow on decaying matters. Decaying means that is under decomposition. Because fungi help to decompose things, that's why they grow on decaying matters. Now fungi, they are harmful because they cause skin diseases like ringworm and athlete foots. Okay, but there are some fungi like yeast that you put in cake. Okay, while baking cake you put yeast. That is also a fungi, but that is useful because it helps to make the bread soft. Okay, तो बच्चों जो अगला है हमारा फंगी. फंगी एक माइक्रोस्कोपिक प्लांट होता है जो कि जो डिकेइंग मैटर होता है ना, जैसे जो सड़ रहा होता है या डिकम्पोज हो रहा होता है, उसके ऊपर ये फंगी ग्रो करता है. ठीक है, क्योंकि फंगी और बैक्टीरिया क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं. फंगी जो है हार्मफुल होता है क्योंकि उससे स्किन की बीमारियां हो जाती है, जैसे एथलीट फुट और रिंगवॉर्म्स. रिंगवॉर्म्स में हमारे पूरे उस पर दाग हो जाते हैं बॉडी पे. ठीक है, जो फंगी होता है, पर कुछ फंगी ऐसे होते हैं जो हेल्पफुल भी होते हैं, जैसे कि ईस्ट सुना होगा आपने, ये खाने में भी डलता है. जैसे ब्रेड वगैरह को सॉफ्ट करना होता है ना, बेक करते हो जब, तब ईस्ट डलता है क्योंकि ये ब्रेड को सॉफ्ट करने में काम आता है. ओके, नेक्स्ट इज प्रोटोजोआ. Protozoa are bigger than bacteria but are still very tiny. Dengue fever, dysentery and malaria are caused by protozoa. So protozoa, they are bigger than bacteria. Okay, but still they are very small. Although they are bigger but still very small. Dengue fever, dysentery, it is like diarrhea. Okay, so it is an infection in the intestine. Malaria, they all are caused by
protozoa. Okay, and this is the picture of protozoa when you see it under a microscope. तो प्रोटोजोआ जो है वो बैक्टीरिया से बड़ा होता है, बट फिर भी वो बहुत छोटा ही होता है, हमें नहीं दिखेगा पर होता वो बैक्टीरिया से बड़ा है. डेंगू फीवर, डायसेंट्री और मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है. डायसेंट्री भी बीमारी है जिसमें आपका जो है इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाता है और आपको जो है डायरिया हो जाता है. ठीक है, डायरिया वगैरह लग जाती है. ठीक है, पेट खराब हो जाता है, मीन्स इन शॉर्ट. तो ये है प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियाँ. ओके, नाउ आफ्टर, so with this we have completed our chapter. Okay, now we will do the difficult words and word meanings of this chapter, that is word meanings of chapter teeth and microbes. So let's get started. So first is jaw. Each of the upper and lower bony structures in vertebrates forming the framework of the mouth and containing teeth. So what is a jaw? So jaw is a bony structure and it is in upper as well as in lower part. Okay, and it form the framework of mouth and it has teeth also. ठीक है, तो जॉ का मतलब होता है जबड़ा. जबड़ा आपने देखा होगा किसी भी जानवर का या अपना भी देखो तो ऊपर और नीचे होता है और इससे आपके जो है एक बोनी स्ट्रक्चर हड्डियों का बना होता है ये, और इससे जो है आपको एक शेप मिलती है माउथ की. माउथ होता है ना, उसका फ्रेमवर्क बनता है और उसमें दांत भी होता है. तो जबड़े में क्या होते हैं, दांत होते हैं, है ना, और हड्डी हड्डी सा भी होता है. ठीक है, एक ऊपर वाला जबड़ा होता है और एक नीचे वाला होता है, अपर और लोअर. Next is dental floss. A soft thread of floss silk used to clean the teeth. So dental floss is used to clean the teeth. Okay, तो बेटा डेंटल फ्लॉस ना एक बिल्कुल मुलायम सा धागा जैसा होता है जो सिल्क का होता है और इससे आप दांतों को जो है साफ करने में हेल्प करता है. फेवरेबल, फेवरेबल मीन्स सूटेबल. फेवरेबल का मतलब जो बिल्कुल आपके लिए सूटेबल कंडीशन होती है. ठीक है, जो आपके अनुकूल होती है, अनुकूल. डिके, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन थ्रू एक्शन ऑफ बैक्टीरिया और फंगी. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिके? डिके इट इज द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन एंड डिकम्पोजिशन हु डू दिस डिकम्पोजिशन? बैक्टीरिया और फंगी. डीके का मतलब होता है बेटा, जैसे आपने देखा होगा कोई जानवर मर जाता है तो अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ दो ना तो सड़ने लग जाएगा, फिर कीड़े पड़ जाएंगे उसके ऊपर, और कुछ टाइम बाद अगर आप एक महीने बाद आके देखोगे तो वो वहाँ पे होगा ही नहीं, क्योंकि वो जो है डिके हो चुका है. ठीक है, नाउ वी विल डू द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. फर्स्ट, वेयर आर द टीथ प्रेजेंट? आंसर, teeth are present in the upper and lower jaws of the mouth. तो इसमें पूछा गया है कि दांत कहाँ होते हैं. दांत जो है ना आपके मुंह के ऊपर और नीचे वाले जबड़ों में होते हैं. सेकंड, डिफाइन परमानेंट टीथ. इन दिस यू हैव टू टेल व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय परमानेंट टीथ. आंसर, अ न्यू सेट ऑफ टीथ दैट इज डेवलप्ड बाय द एज ऑफ 20 आर कॉल्ड परमानेंट टीथ. So permanent teeth, they are completely new set of teeth. Okay, and that are developed by the age of 20. So they are called permanent teeth. तो permanent teeth वो नए set of teeth होते हैं बेटा. जब तक आप 20 साल के हो जाओगे ना तब तक ये सारे दांत आपके मिल्क टीथ गिर के बिल्कुल नए नए दांत आ जाएंगे. उस नए दांतों के सेट को permanent teeth बोला जाता है. थर्ड, what is the function of enamel? So in this you have to tell what is the use of enamel. Answer, enamel protects the inner portion of a tooth. So enamel, which is the hardest part in our body, it safeguards or protects the inner portion of a tooth. Okay, like pulp, dentine, all these. So आपको इसमें बताना है कि इनैमल का क्या फंक्शन है, क्या वो करता है. तो इनैमल जो है ना वो हमारे दांत के अंदर वाले हिस्सों को सुरक्षित रखता है.
अंदर क्या क्या होता है, जैसे पल्प है, डेंटाइन है, ये सबको प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। फोर्थ, विच न्यूट्रिएंट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर टीथ एंड गम्स? Answer, calcium and vitamin C are important for teeth and gums. So in this you have to tell which are the nutrients that are very important for the teeth and gums. So calcium and vitamin C, they are the important nutrients for your teeth and gums. Okay. तो बेटा कैल्शियम और विटामिन सी बहुत ज़रूरी होता है न्यूट्रिएंट आपके दांतों के लिए और आपके मसूड़ों के लिए, ठीक है। फिफ्थ, राइट एनी 2 डिसीजेस कॉज्ड बाय फंगी। आंसर, ringworms and athlete foot are 2 diseases caused by fungi. So fungi, it is a microbe, okay. So the disease that are caused by fungi, you have to write this. So ringworm and athlete foot, they are the disease which are caused by fungi. तो आपको इस क्वेश्चन में वो उन 2 बीमारियों को बताना है जो फंगी की वजह से होता है। तो रिंगवर्म जो कि एक स्किन डिसीज है और एथलीट फुट भी, ये दोनों बीमारियां फंगी की वजह से होती है, ठीक है। मूविंग ऑन टू लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। फर्स्ट, हाउ डू टीथ हेल्प अस? सो इन दिस यू हैव टू टेल इन what are the ways in which teeth help us. Answer, teeth help us to bite and chew food. So with the help of teeth you can bite and chew your food. Teeth give proper shape to the face and it also give proper shape to your face, okay. They also help us to speak clearly and because of teeth you can speak very clearly, okay. Very old age person, they don't have teeth, okay. So that's why you can't understand what they are saying because their words are not clear to us because they don't have teeth. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा गया है कि दांत हमारी कैसे मदद करते हैं। तो दांत तो बेटा दांतों से क्या करते हैं, फूड को चबाते हैं, काटते हैं, ठीक है। पहला तो ये यूज। दूसरा, जो दांत होते हैं ना मुंह में, उससे आपकी फेस को एक प्रॉपर शेप मिलती है, ठीक है। तीसरा जो है, जो भी आप बोलते हो वो आप क्लियरली बोल पाते हो अगर आपके मुंह में दांत है तो। जैसे बहुत ही ज़्यादा वृद्ध बूढ़े लोग होते हैं, उनके दांत नहीं होते, तो वो जो बोलते हैं ना बच्चों, वो क्लियर हमें समझ नहीं आ पाता, ठीक है, क्योंकि उनके मुंह में दांत नहीं है, इस वजह से। सेकेंड, हाउ आर कैनाइन्स एंड प्रीमोलर्स हेल्प अस? So in this you have to tell how canines and premolar help us. They are the types of teeth, okay. So answer, canines help us to tear the food. Why? Because canines, they are very sharp and pointed teeth, so they help us to tear the food, okay. Premolar help us to crush and grind the food. So premolars, they are broad and wide, so they help us to crush एंड ग्राइंड। तो बच्चों आपको इसमें बताना है कि कैनाइन्स और प्रीमोलर्स हमारी कैसे मदद करते हैं। तो कैनाइन्स तो जो आपको कुछ भी खाना है ना, उसको टीयर का मतलब फाड़ने में काम आता है। जैसे मान लो कोई इंसान है, कोई भी अगर वो नॉनवेज खाता है तो वो उसको टीयर करने में फ्लैश को वो काम आता है, ठीक है। तो यानी कि इसका मेन काम है कुछ चीज़ को फाड़ने में काम आता है। प्रीमोलर्स क्या काम आता है, ये क्रश करने में या ग्राइंड करने में काम आता है, ठीक है। यानी कि क्रश और ग्राइंड करने में काम आता है। उसके बाद एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ टूथ डिके। So in this you have to explain the complete process of tooth decay, okay. So answer, when bacteria or germs start growing on the food that get stuck between the teeth, they first make a sticky coating on enamel called plaque. So whenever you eat food, some food they get in between or they get stuck between the teeth, okay, and there the germs or bacteria it started growing on that food. Then they make a very sticky coating on the enamel, that is the white part of your teeth that you can see, and that sticky coating is called plaque.
Then the germs make cavity on the tooth surface. Then the germs that is present on the enamel, they start making cavity. Cavity means hole on the tooth surface. They travel through dentine to the pulp, making the cavity bigger and bigger. And with time, what will happen? The germs, they will start moving from the dentine to the pulp. Because hole is on the enamel, then they will go to dentine, then they will go to pulp, and as a result, the cavity will become bigger and bigger. As a result, the tooth start paining, and this is called tooth decay. And because of that cavity, and because the germs, they reached the pulp, okay, so the tooth started there, you start feeling the pain in your tooth, and this is called tooth decay. ओके, तो आपको बच्चों बताना है कि जो टूथ डिके है, जिसमें दांत खराब हो जाते हैं ना, उस वो होता कैसे है। तो जब बैक्टीरिया और जर्म्स जो है ग्रो करने लग जाते हैं उस खाने में जो आपके दांतों के बीच में अटका हुआ है, ठीक है, तो पहले वो क्या करते हैं, वो आपके इनेमल का मतलब जो वाइट आपको दिखता है ना, आपके दांत वाइट कलर के, वो इनेमल होता है, उसके ऊपर जो है कोटिंग सी बना देते हैं, चिपचिपी, जिसको प्लेक कहते हैं। अब ये जर्म्स क्या करते हैं, अब ये जर्म्स जो है आपके दांतों में एक कैविटी बना देते हैं दांतों के ऊपर। कैविटी का मतलब है होल। फिर वो वहाँ से जो है चलते चलते डेंटाइन में के थ्रू पल्प तक पहुँच जाते हैं, और ऐसे वो अब जो आपकी कैविटी है दांतों में, होल है, उसको और बड़ा बनाते जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है, दांतों में दर्द स्टार्ट हो जाता है। पेन का मतलब दर्द, जिससे आपका दांत खराब हो जाता है, ठीक है। टूथ डिके इसको कहते हैं, इस प्रोसेस को, जिसमें दांतों में कैविटी बन जाती है। कीड़े जब खाते हैं दांतों को, उसको टूथ डिके बोलते हैं। फोर्थ, व्हाट आर माइक्रोब्स? Microbes are very small living things which are found everywhere. So microbes, they are very small living things, okay, and they are found everywhere, and they can be seen only under a microscope. So microscope is a instrument, with the help of that you can see microbes, otherwise you can't see a microbe because they are very small in size. तो आपको इसमें बताना है कि माइक्रोब्स क्या होते हैं। माइक्रोब्स जो है ना बच्चों, वो बहुत ज़्यादा छोटे लिविंग थिंग्स होते हैं जो कि हर जगह पाए जाते हैं। उनको आप जो है अपनी आँखों से नहीं देख सकते, सिर्फ उनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप के अंदर ही वो दिखेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ के होते हैं। इसलिए माइक्रोस्कोप का यूज़ करके आप उसको देख सकते हो, बट वैसे नहीं देख सकते। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. So question number 5 is, how are some bacteria useful to us? So there are some bacteria which are beneficial to us also. So you have to explain how. Answer, some bacteria are useful because they change milk into curd or cheese. So some bacteria help us to convert milk into curd or cheese. So it is the first use. Second, they help in decaying of dead plants and animals. So they help in the decomposition of the dead plants and animals. Okay, so finally they will get up mixed in the soil and make the soil very fertile. Third, they break down the food and help us to digest it. Some bacteria are helpful in breaking down of the food, and because the food is break down into smaller pieces, or they are break down, so it is helpful in easy digestion of that food. तो आपको बताना है कि जो बैक्टीरिया है वो हमारी मदद कैसे करते हैं। तो आप सबको पता है कि कुछ बैक्टीरिया नुकसान पहुंचाते हैं, बीमारियां फैलाते हैं, कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल है। तो यूज क्या क्या है? तो जो कुछ बैक्टीरिया जो कि यूजफुल है, क्यों यूजफुल है? क्योंकि वो दूध को दही में या चीज़ में कन्वर्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए काम आता है, ठीक है। कुछ जो है बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो जो मरे हुए पौधे हैं, जानवर है, उनको जो है, पहले देखो अगर कोई जानवर या पौधा मर जाता है ना, जैसे जानवर मर गया मान लो, कोई ठीक है, चूहा मर गया मान लो, तो
वो अगर आप ऐसे ही पड़ा रहेगा ना तो उसमें लास्ट में वो जो है वो अपने आप ही उसको कीड़े खाने लग जाएंगे। फिर कुछ टाइम बाद देखोगे ना तो वहाँ पे होगा ही नहीं, क्योंकि वो मिट्टी में जो है वो डिकम्पोज हो चुकी है, वो उसको सारे जर्म्स और बैक्टीरिया ने उसको खा लिया और उसको डिकम्पोज कर दिया और उसको मिट्टी के साथ मिला दिया और फर्टाइल कर दी मिट्टी को। तो डिकम्पोजिशन में काम आता है डेड प्लांट्स और एनिमल्स के। द ब्रेक डाउन ऑफ फूड, बैक्टीरिया हेल्प करता है, ठीक है, कि हम जो है डाइजेस्ट कर सके फूड को, क्योंकि फूड के ब्रेक डाउन में भी ये हेल्प करता है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द बैक एक्सरसाइज। फर्स्ट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। पार्ट 1, द टीथ स्टार्ट appearing when the baby is around. So when the baby is around 6 months old, then the teeth start coming. Okay, so the right answer is 6 months old, so you have to tick this. Second, normally an adult has 32 teeth, while a baby has 20 teeth. Okay, a 3-year-old baby. So an adult means a grown up has total 32 teeth, so you have to tick this. The shining white part of a tooth is called, enamel. So it is the hardest part that you can't in your body, so you have to tick enamel. Microbes which have one cell are called, microbes that have only one cell we call them bacteria, so you have to tick this. Dengue, fever, dysentery and malaria are caused by protozoa. Okay, so you have to tick this. तो बच्चों टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन में पहला है कि जो दांत है वो बच्चों बेबी है उसमें कब आने लग जाते हैं, तब जब वो 6 महीने के हो जाते हैं ना, तब आने लग जाते हैं। तो आपको ये ठीक करना है। आमतौर पर एक एडल्ट व्यक्ति यानी कि एक जो बड़ा इंसान होता है, ठीक है, यानी कि एक नॉर्मल ग्रोन अप, ठीक है, उसके पास कितने दांत होते हैं, उसके बाद 32 दांत होते हैं, तो इस पर टिक करना है। जो आपको चमकता वाइट पार्ट दिखता है अपने टूथ का, जो आप देखते हो ना वाइट कलर के होते हैं दांत, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इनेमल, ठीक है। जो माइक्रोब्स होते हैं जिनके पास सिर्फ एक सेल होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बैक्टीरिया। डेंगू, फीवर, डायसेंट्री और मलेरिया किसकी वजह से होता है, ये होता है प्रोटोजोआ की वजह से, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू फिल इन द ब्लैंक्स एंड मैचिंग। Fill in the blanks. First is teeth give proper dash to the face. So teeth give proper shape to the face. दांत जो है हमारे फेस को ना एक शेप देते हैं प्रॉपर, ठीक है। सेकेंड, एन एडल्ट हैज डैश मोलर्स इन ईच जॉ. सो एन एडल्ट हैज टोटल 6 मोलर्स इन ईच जॉ. तो जो एक वयस्क इंसान होता है, एक इंसान जो 22 ईयर्स का या 18 से ऊपर का होता है, जो एक बड़ा इंसान होता है, ठीक है, वो उसके पास टोटल 6 मोलर्स होते हैं हर एक जबड़े में. द रूट्स द डैश मेक श्योर दैट टूथ स्टे इन प्लेस. सो द रूट इट मेक श्योर दैट द टूथ स्टे इन प्लेस. तो रूट जो होता है वो एक पार्ट है, वो अपने दांतों को अपने प्लेस पे रखते हैं और जो उसको जबड़े से जॉ से जोड़ के रखते हैं, ठीक है. We must dash the mouth after every meal. So we must rinse the mouth after every meal. तो हमेशा हर खाना खाने के बाद जो है हमें अपना मुंह धोना चाहिए पानी से, ठीक है. A dash is smaller than a bacterium. So a virus is smaller than a bacterium. Bacterium से छोटा क्या होता है, वायरस होता है. Okay. Now moving on to match the columns. First set of teeth. We call them, yes, milk teeth. Incisors, they are cutting teeth. Pulp, it is inside the dentine. Dental floss, it is used to clean between the teeth. Virus cause measles. Okay, it is a disease. So
जो पहला सेट होता है दांतों का उसको तो मिल्क टीथ कहते हैं। इंसीजर जो कि एक टाइप ऑफ टीथ होता है वो कटिंग के काम आता है, कटिंग टीथ होते हैं ये। पल्प, पल्प जो है टीथ टूथ का एक पार्ट होता है जो कि डेंटाइन के अंदर होता है। डेंटल फ्लॉस मैंने अभी समझाया, ये जो है दांतों को साफ करने के काम आता है, दांतों को बीच में क्लीन बिटवीन द टीथ, जो दो दांत है उसके बीच में सफाई करने के काम आता है डेंटल फ्लॉस। वायरस, वायरस से बीमारी कौन कौन सी होती है, बहुत सारी होती है, उसमें से एक बीमारी का नाम है मीजल्स। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज क्लास। यू हैव टू read this chapter and fill this back exercise in your book. Thank you so much. Have a nice day. Bye.